Yeah, so let us just talk about why the hype is there. Yeah. So I think the hype is there because remember 2016 में जब demonetization हुआ था, just thinking why the government मतलब अचानक से आके उसने बोल दिया कि अब तो लीगल टेंडर नहीं है, 500,000 के नोट और नई करेंसी आएगी. सो वाई डू यू थिंक गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था? बिकॉज इट्स अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो जिसके पास ये पावर है कि वो ऐसा कर सकती है. वो एक पीस ऑफ नोट को मतलब करेंसी बोल सकती है और फिर उससे रिवर्स कर सकती है. इट हैज़ द पावर टू. सो ये हो गया सेंट्रलाइजेशन एक तरह से. जैसे बैंक्स वगैरह भी आरबीआई के अंडर आती है, तो वो भी एक तरह का सेंट्रलाइजेशन है. सो द एक्साइटिंग थिंग अबाउट बिटकॉइन और एनी काइंड ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो इज दैट कि वहाँ पे ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जो अचानक से आके बोल देगी कि दिस इज नो मोर वैलिड. इट इज हार्डली बेस्ड ऑन वट एवर द प्रिंसिपल्स ऑफ द मार्केट आर. Yeah. So you see billionaires लोग जो होते हैं, they don't want to be controlled. Of course, no one wants to be controlled. I mean, normal people like us, कभी हम लोग गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, बट दे आर रिच इनफ कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट की स्कीम से. सो दे डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड and yeah, so they are trying to bring this decentralized version of currency जिससे वो लोग ट्रांजैक्शंस कर सके और उनके ऊपर कोई अथॉरिटी भी ना हो. इट इज़ फुली based on the principles of the market. We call libertarian views. So I think this is why there is so much hype around it. और देख क्या होता है कि जब बिल गेट्स का न्यूज़ आता है, so आया था कि वो he is the richest person in the world. Everyone wanted to be Bill Gates. Similarly, Steve Jobs का जब आया था कि Steve Jobs is a kind of revolutionary person. Everyone wanted to be Steve Jobs. Similarly, Elon Musk. Everyone wants to be Elon Musk. Suddenly, Whitehead Junior के ads देख लो. I know this is off the topic, but still, suddenly everyone wants to be like that. So since they are investing so much into it, they are promoting it. तो कहीं ना कहीं normal public is also like, oh, we also want to buy it. फिर ऐसे apps आ गए, CoinDesk. दो इंडिया में तो बैन हो गया है. CoinSwitch is very famous in India when we talk about crypto. तो इंडिया में तो बैन हो गया, बट बाहर के देश में नहीं है बैन, सो दे काइंड ऑफ बाय एंड सेल इट. Yeah, and also the new policy by RBI which says that it would bring a digital currency. It is very much different than cryptocurrency, but not very different. It would still be, inflatable currency. Yeah. कहीं ना कहीं it will be centralized. Yeah, the only similarity is it will be centralized. Other than that, everything will be quite similar. So I think we should also talk about why India planning to buy Bitcoin is. One more thing that is very much in news is the new kind of currency that would be rolled out by the RBI. It is said to be a digital currency, but it is not very much like cryptocurrency. It will just be like an digital currency. जैसे मार्केट में हमारे होते हैं पैसे सर्कुलेट होते हैं, वैसे a part of it would be digitalized. आप बैंक से जाके उसको निकाल नहीं सकते. The only difference would be कि that would be not like crypto, but it would be kind of digital currency जहाँ पे आप उसको निकाल नहीं सकते, but you can still use it. The biggest disadvantage is कि blockchain अपने आप में बहुत ज़्यादा एक decentralized system पे based है, but हमारा government is kind of trying to centralize it via channeling it via RBI. So I don't think. Yeah, of course, because blockchain technology is very much secure. उसमें we don't need the guidance of RBI. It is very much खुद में sufficient. खुद में sufficient है, but people like Bill Gates and Warren Buffett don't approve of it. And I'm very I think you all might know the reason, because यहाँ पे कोई authority नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा illegal activities, terror funding इन सब में use होता है. So I think now you are clear why there is so much hype around crypto, private crypto, basically Dogecoin, वही बोलते हैं ना, Bitcoin. So I think now it brings us to the second part of the podcast, which talks about
डिसेंट्रलाइजेशन. नॉट डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब ये रहेगा या नहीं रहेगा, Okay. whether crypto is here to stay or not. So what do you think? I तो think it will stay. Me too. I think that in coming times इसका जो क्रेज है वो और बढ़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल करे, बिकॉज विथ कंट्रोल कम्स सम काइंड ऑफ यू नो आई मीन, मतलब कहीं ना कहीं बहुत रेगुलेशंस आ जाती है. Yeah. You can't be whatever, you can't do whatever you want to do. And at the same time there are many people जो बोलते हैं कि gold will reduce in value. It won't. इट विल नेवर. एंड क्योंकि- विद द मतलब जिस तरह से कम हो रहा है गोल्ड के रिजर्व्स, उस अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल. हो सकता है कि आने वाले टाइम में इट वुड बिकम वेरी मच रेयर. Gold ना. या And also because government की सारी backing जो है it is based on number 1 US dollar, number 2 gold. या जैसे बैंक्स वगैरह भी अगर उनको गोल्ड रखना पड़ता है ना टू as a करेंसी छापने CRR, के लिए. हाँ, तो फिर या गोल्ड विल नेवर डिमिनिश, और एकदम सही बात है, इट माइट इंक्रीज इन वैल्यू. एंड नंबर 3 also I think gold will not go away so easily is because governments, the system of governance here to stay. Yeah, The and system of also, countries is yeah. here to stay. ऑफ कोर्स. एंड ऑल्सो कि अगर गोल्ड की वैल्यू डिमिनिश हो जाएगी तो व्हील जो होगी नहीं, बट मान लेते हैं फॉर लाइक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की हो जाती है, तब भी वी विल नीड समथिंग एल्स जिसके अगेंस्ट हम करेंसी अपनी यू नो प्रिंट करेंगे. कर सके. And सिक्योरिटी government will never approve of private cryptos. Yeah. At least private. एटलीस्ट. सो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मतलब गवर्नमेंट कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेगी, बट आज के टाइम पे इतने ज़्यादा यू नो प्राइवेट ओनर्स हैं जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन कम हो. जैसे यूएस में क्या है, दे वांट मिनिमम इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो अगर वैसी सोसाइटीज़ में देखा जाए तो आई थिंक क्रिप्टो इज गोना स्टे. और फिर वट एवर हैपन्स इन द वेस्ट दैट विल ऑफ कोर्स Affect India. and Especially all Asia. all the third world countries. But Asia बोल सकते हैं. Yeah. Certainly affect Asia. So I think the government of India is wrong in banning private cryptos. I even wrote a blog on it. देख, सबसे पहली बात तो why are you denying the benefits of decentralization? Yeah. सबसे पहली बात तो ये. We'll definitely talk about decentralization and why it is beneficial in the later part of this podcast. It might be the conclusion. So I think this is one main reason why I think that government should not be banning Bitcoin, not just Bitcoin but any private crypto. And also अभी तो Elon Musk अगर Dogecoin को सपोर्ट कर रहा है, so who knows, कल दिन Dogecoin जाके मार्स का करेंसी बन जाए. Yeah, so I think gold will stay. Definitely. Of course it has to. खरीदो भाई, सोना खरीदो. हाँ. डोंट वरी, आराम से खरीदो. गवर्नमेंट रहेगी, सरकारें रहेंगी, देश हाँ. रहेंगे, तो सोना भी रहेगा और तेल भी रहेगा. जैसे ईवी के आने से क्या डीजल कार, पेट्रोल कार चला गया नहीं ना, बल्कि देखो बढ़ रहा है. वही तो सिमिलर बिकॉज जो भी अनरिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि नॉट रिन्यूएबल. हाँ क्योंकि वो एक दिन यू नो दे विल जस्ट गो एक्सटेंट वन डे. जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं, सही. तो यू नो जैसे जैसे एक्सटेंट होने के कगार पे आएंगे वैसे वैसे वैल्यू तो And, बढ़ेगी. ये सब देखता भी तो ओपेक कंट्रीज है. या ओपेक, जब से ओपेक आया है तब से कहीं ना कहीं स्टेबलाइज भी हुआ है और कहीं ना कहीं बहुत नुकसान भी हुआ है अगर मतलब देखा जाए. ओपेक कंट्रीज है तो फिर तेल नहीं जाएंगे, सोना नहीं जाएगा. ये वही तो तो. सुन लो. तो आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं आप सोने में, ऐसा कुछ ये नहीं है. इवन दो वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बट आई थिंक इट दैट्स वेरी मच लाइक कॉमन सेंस की एक रूमर की हाँ गोल्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड की वैल्यू सच में कम हो जाएगी. इट इज हियर टू स्टे. हाँ, और आज इंडिया में तो और और स्टे करेगा वही तो. क्योंकि भाई शादियों में क्या चढ़ते हैं सोने भाई, वो तो देखो. इंडिया में से नहीं सोने जाएगा. की पूजा होती है इंडिया में. सो इंडिया में तो सोने की वैल्यू कभी कम नहीं होगी. अगर मैं कल आज जाके अपने पापा को बोलूं कि पापा मुझे बिटकॉइन लेना है, नहीं, he will not. मैं बोलूंगी मुझे सोना लेना है, हाँ, वो he'll मुझे approve. पैसे निकाल के देंगे. वही तो दैट्स द डिफरेंस इन आवर मेंटालिटी कि हम भी, क्योंकि बिटकॉइन और एनी क्रिप्टो इज वेरी न्यू कंसेप्ट फॉर अस. धीरे धीरे टाइम लगेगा. वील मतलब अंडरस्टैंड we द as प्रोस एंड parents कॉन्स. will definitely understand. Yeah. But our parents will never understand. They will invest in gold.
So there are a lot of reasons why gold will stay. So just because some millennials are Yeah. like, oh, gold is gonna diminish, this, that. It's simply because they want gold to be diminished, because they And want the currency to be decentralized. yeah, because they want कि जो हमारा अटेंशन है वो कहीं और शिफ्ट हो. अगर हम सोचेंगे सोने की वैल्यू कम हो रही है तभी तो हम सोना कम खरीदेंगे और बिटकॉइन या डोजी कॉइन कुछ भी ज्यादा खरीदेंगे. इथेरियम रिपल या Okay, so just want us to invest in crypto ताकि उसकी वैल्यू बढ़े और मार्केट में फिर it becomes more हाँ, beneficial. और अगर a larger number of public is using crypto, तो उनके पास भी रहेगा कि हाँ भाई, we are not the only ones who are supporting this type of system, a decentralized system.